नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो आयरियानं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सब साहुनं ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमकारो सौवपावपणासनो सर्वभावपनाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानं च सव्येसिं परमां हवै मंगलम् अडमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद ओके हेमाबेन કયો આપતો પુત્ર કયા આપતો પુત્ર ભાઈ આવવાના છે આજે? આજે દીપક આનંદ મને જોવું પડશે એક મિનિટ ઉભા રહો દીપક આનંદ હું કન્ફર્મ કરું છું હું જ છું ભાઈ દીપક આનંદ કેલન अभी हम ही है आज અચ્છા પહોંચ અચ્છા ગए અચ્છા ચાલો પ્રશ્ન ફર્સ્ટ ક્લાસ પૂછું. હમણાં પરેશભાઈની ક્લિપ્સ આવી હતી. કોઈને ભાર રૂપ થાય એવું જીવન જીવાય નહીં. કૌંસમાં લખ્યું હતું આપતો પુત્રો સાથે કપડા ધોવા સંબંધી. सही है मैं एक मेरी बात खुली करता हूँ गलत नहीं लगाना नहीं गलत लेने का नहीं. ना गलत नहीं लेना मैं जहाँ रहता था महात्मा के परिवार के साथ तब कई बार हम बाहर जाते थे तो कपड़े ज्यादा हो जाते थे तो हमें बताया जाता था कि ऐसा करें आज 2 रखें फिर करें परसों करके. तो मेरी समझ में आ गया कि दिक्कत घर में जो कपड़ा धोने के लिए आते हैं वो खिच खिच करते रहते हैं तो क्या करेंगे. तो हमने समझ लिया कि ये परिस्थिति है तो उसका समाधान ले लो. तो तब से मैं अपने कपड़े खुद धो लेता था. कितने सालों तक अपने कपड़े मैं ही धोता हूँ. बाहर गए और वो परिस्थिति है तो वो कुछ नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पर होते हैं किसी के घर तो खुद ही धो लेते हैं. ये बात है कि क्योंकि अगर 5 आप्तपुत्र है और सब इकट्ठे हो गए तो दिक्कत तो हो ही जाएगी ना. तो ये समझदारी से रहना चाहिए क्योंकि जहाँ भी जाए वो कबीराज भी हमारे लिए लिखा है ना दूध में शक्कर मिलाते हैं ऐसे वो घुल मिल जाते हैं. तो इस तरह से हमें जीना चाहिए कि हम सामने वाले पर बिल्कुल बोझा रूप ना हो. जैसे आप घर पर है तो मुकुल भाई को बोझा नहीं लगना चाहिए और मुकुल भाई भी ऐसा रहे कि आपको बोझा रूप ना रहे. दोनों की तरफ है समझिए બરાબર છે. તો અહીંયા અમારે ત્યાં આપતો પુત્રો બધા આવતા હતા. એક આવે કોઈ વાર 2 આવે કોઈ વાર 4 આવે તો ઘણા આપતો પુત્રો પોતાનું કપડું કાઢીને લોન્ડ્રીમાં આપે. તમે જરા ધોઈ કાઢજો ને. એટલે મારા અંદર અંદર ચૂંચું ને એવું થાય કે પેલું મશીન ચલાવવું પડે. આખું મશીન ચાલે વોશર તો એમાં એલર્જી વધારે પડે. પછી એક કપડું નાખો. હવે મશીનો એવા થઈ ગયા છે કે અડધો લોડ કરો પા લોડ કરો એવા મશીનો નીકળ્યા છે અત્યારે. હવે અત્યારના 15 મિનિટ સાયકલ भी आ गई है. હા હવેના મશીનો એવા નીકળ્યા પણ પહેલાના મશીનમાં નહોતી આવતી એટલે આખો લોડ કરવો પડે. આખા લોડમાં એટલી બધી એક તો મહાપરાણે અમે રહેતા હોઈએ અને બોલાવતા હોઈએ એટલે ભાઈ આટલું ધોઈ કાઢજો ને આટલું ધોઈ કાઢજો ને
અને દાદાની વાત કરું, દાદા ભગવાન કેવું કરતા હતા હું તમને કહું. દાદા ભગવાન સવારના ઉઠ્યા હોય પછી તો નાસ્તો કરે, પછી નાહવાનું હોય, અને એવામાં અચાનક છે ને કોઈ બીજાના ઘરે જવાનું થાય એટલે દાદા મને ધીરે ને કે એમાં મારું ધોત્યું અને પેલું બનિયન પહેરતા હતા ઉપરનું એ લઈ લેજે જોડે, અને એમનો પેલો એક સરસ નાનો કકડો હતો શરીર લૂછવાનો એ લઈ લેવાનો જોડે, અને દાદા જતા હતા. પછી મને કે અત્યારે 12, 11, 11:30 થયા છે ને, અહીંયા નવાય કે છે? હા દાદા નવાય ને. પછી પેલા મહાત્માને કહું કે અહીંયા દાદાને જરાક નાવું છે. તે એક જ ડોલથી દાદા નાહતા હતા, અને એ ત્યાં જ કપડા બદલી કાઢે, પછી કપડા હું નીચોય કાઢું, પછી કે સાબુ બાબુ નહીં લગાડવાનું, નીચો જ કાઢ, બોળી કાઢવા, નીચો કાઢ, આપણે સુકાઈ જાય ને પછી આપણા ઘરે લઈ જવાના. આટલું મને દાદાએ શીખવાડેલું કે આવી રીતે મારી સાથે આવો તો આવી રીતે કરવાનું એમ. એટલે કોઈને ભારરૂપ નહીં થવાનું. એટલે આ વર્ડમાં કહેતા હશે ભારરૂપ, કે આપણે અંદરથી ભારરૂપ કરવું પડે. क्या बताया? આ કોઈને ભારરૂપ થાય એવું જીવન જીવાય નહીં, તે અંદરથી આપણે સમજવાનું છે ને આખું. अंदर से समझना है, लेकिन उसका व्यवहार में अमल होना जरूरी है ना. અચ્છા, તો પછી એવું કે છે કે તમારું આ વખતે તમે જ્ઞાન સાંભળ કરો તો તમારો આવતો જન્મ સરસ આવશે, પણ આ જન્મમાં શું? ऐसा है ना, बहुत कुछ तो आज ही बदल सकता है, लेकिन हमारे तरफ से वो होना चाहिए, बस यही तैयारी होनी चाहिए. પછી બીજો પ્રશ્ન છે, એમણે જ લખ્યો છે, અહંકાર છે ત્યાં સુધી ઢાંકીને બધી વાત બોલે છે, આબરૂ ન જાય માટે. क्योंकि उनको लगता है ना, जरा डीप समझाओ आ अहंकार ની વાત છે એટલે. मैं खुला हो जाऊंगा. दादा को अहंकार नहीं था, इसलिए वो अपनी बात खुलकर कह सकते थे. वो जो पाठ बनी है ना जिन पर हम बैठते हैं, वो लकड़ा चोरी किया हुआ लकड़े का बना है, ऐसा करके बताया. તો वो એ વાત કહેતા હતા દાદા, પણ એ વાત મારા હું એવી રીતે સમજુ છું કે દાદા આપણને કહેવા માટે કહેતા હતા, બાકી દાદા કે ચોર ના હોય કે ચોરી કરી હોય, આપણું કહેવા માટે કહેતા હોય, એટલે આપણે ઉઘાડા થઈ भी है. उन्होंने अपना खुला किया, वरना ज्ञानी पुरुष, इतने बड़े ब्रह्मांड के पुरुष, उन्होंने अपनी बात खुली की. आप समझे? वो हमें बताने के लिए किया, किसको लिए, लेकिन उन्होंने खुला किया. सही है, और हमें सीखना है उनसे कि जब तक हम उसको छुपाते रहेंगे तब तक वो दोष हमारे में से जाएगा नहीं. तो अहंकार वगैरह तो कशु थाय नहीं, कशु बोलाय नहीं, हाथ भी ऊंचो ना थाय, वो अलग बात है, वो अलग बात है, ये अलग बात है. वो अहंकार स्वाभाविक अहंकार है शरीर को चलाने के लिए. अच्छा अच्छा. और ये एक्स्ट्रा अहंकार है जो अपना रक्षण करता है, करवाता है. आप समझिए? देखिए, आपको बाथरूम जाना है तो आप खड़े होकर के चले जाएंगे. पानी पीना है तो आप कूदकर ग्लास लेकर पानी पीकर आएंगे. लेकिन वो एक अहंकार ऐसा है, मुकुल भाई को बोलेंगे कि मुकुल भाई जरा प्लीज पानी दे दो ना मुझे, वो भी अहंकार है, वो दूसरों से करवाता है. दूसरों को हिलाने का राइट नहीं है हमें. लेकिन वो अपने आप करे तो, हाँ, अपने आप करे तो, अपने आप करे तो अपने आप तो आपके लिए तो कर ही सकते हैं ना. अच्छा अच्छा. आप करेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन दूसरों को कहेंगे तो उनको अच्छा बुरा लग सकता है. अच्छा अच्छा, इतना ध्यान रखने तो का. अहंकार शरीर को चाहिए चलाने के लिए, वो स्वाभाविक है, उसके लिए कोई झगड़ा नहीं बताया, उसका कोई विरोध नहीं किया. लेकिन जो दूसरों को चलाता है, चलाने को रखता है, चलाने को फिरता है, तो वो सामने वाले को दुख होगा ना. और वो बुरा इतना भी लग सकता है कि सारे दिन मुझे आपको पानी देता रहना है.
મને ખબર છે दिन में 2 बार पानी मांगेंगे, लेकिन वो बोलेंगे ऐसा, उनका प्रतिभाव कैसा होगा, आपको सारे दिन क्या मुझे पानी देते रहना है? बराबर છે. ऐसा है, अहंकार है ना. એ અમારે પિંકી ને નાની હતી ત્યારે કહીએ ને કોક વાર કે પાણી પાણી લાઈને કઈ વાર પર સોફામાં બેઠા હોય તો અમારા ઘરમાં બધા માણસો હોય એટલે આપણે કે બેટા જરા અહીંયાથી અહીંયા બેસ ને, કોક એવું આવે મામા આયા છે ને જરા ત્યાં બેસ ને, એટલે 2-4 વાર ઉઠીને જાય પછી કે મને જ કેમ હું નાની જન્મી તો મને જ ઉઠાડ ઉઠાડ કરે છે કે वो बताता है कि दैट इज एक्स्ट्रा अहंकार, जो दूसरों को दुख हो सकता है उससे, और होता भी है. ऐसा बताया जाता ना कि किसी को ऐसा नहीं कहना जरा हटो यहाँ से. गुजराती में क्या बोलते हैं, खस नहीं कहવાનું कोई ने. ओ बापा, बहुत ध्यान रखो. એટલે તો આ જ્ઞાન તો अरे धीमे धीमे जब पता चलेगा, आपका कितना भी संबंध नजदीक का क्यों ना हो, जरा कुछ आपने कह दिया, कुछ कर दिया तो वो बिल्कुल विरोध करते हैं. पटो उतरी जाए तरत ज. यस, क्योंकि सब अपने आप स्वतंत्र है ना, उनकी स्वतंत्रता में हमें नहीं डालना है, किसी की स्वतंत्रता में हमें हाथ नहीं डालना है. इसीलिए जीवन इसी तरह से जीना है. स्वावलंबन होने के पीछे का कारण ही यह है. એટલે મુકુલ કે છે હું પટો રાખતો જ નથી, કે છે ચડાવતો જ નથી, કોઈ દાડ ઉતરે જ નહીં. वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन बात समझना पड़ेगा. સમજણથી થવાય. આ બધી કેટલી ઝીણી ઝીણી વાતો છે. ये वितराग भगवंतों का सिद्धांत है, तो वो तो बहुत सूक्ष्म होगा, तभी तो मोक्ष हो सकता है, तभी तो मोक्ष जाते हैं. ये सब ध्यान में रखेंगे तब मोक्ष होगा. पाई पाई का हिसाब मांगता है. એટલે કેટલું એલર્ટનેસ રાખવી પડે જીવન જીવવામાં, એ હવે ખબર પડે છે. सीढ़ी उतरते वक्त ध्यान नहीं रखते हैं. रखते हैं ना. अरे जरा नजर गई तो फिसल जाएगा, ऊपर से नीचे तक गिर जाएंगे. ऐसा है. હવે કશ્યપ પરેશભાઈ ને કશ્યપભાઈ ને લો, પછી એક પ્રશ્ન છે બીજો હું લઈ આવું પછી. બાજુ મૂક્યો છે. ओके, જય સચ્ચિદાનંદ, जय सच्चिदानंद. डॉक्टर साहब पधारे. आपको बोलते करना पड़ेगा, 1 मिनट. बोलिएगा सब जी. हाँ जी, सबको जय सच्चिदानंद. दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. वो पद है, दुख कोईनो दुख देवानो थायो जे भाव. CD 9:5. बोलिए. वो नीचे एक वो लाइन है, नीचे जाइए. महाउपकारी कड़वा छुड़ावे जे ममत संयोग. हाँ हाँ, ये वाला आगे जो है ना, सुधारे प्राप्त संयोगो धर्म निष्ठा की वंद्य त्रियो. इसका अर्थ समझे नीचे वाली लाइन का ना. हाँ, तो जो प्राप्त संयोग है उस संयोग को सुधारे, सही समझ से प्राप्त संयोग को सुधार दे, वही सही धर्म निष्ठा है, कि ताकि हम वंद्य त्रियोग यानी मन वचन काया के योग से हम वंदन करते हैं, वो वंदनीय बनेंगे. त्रियोग मतलब मन वचन काया के जो योग है ना. हाँ, योग वो मन वचन काया का योग बोला जाता है.
बाहर का होता है उसे संयोग बोलते हैं, अपने अपने साथ जो जुड़ा हुआ है उसे योग बोलते हैं। योग का क्या मतलब होता है? मनोयोग, वाणी योग, मतलब योग यानी योग यानी आपसे जुड़ा हुआ है, मेरा मन, मेरी वाणी, मेरा शरीर बोलते हैं ना, हाँ। मेरा करके, लेकिन वो आपके शरीर का भाग होने के कारण वो मन वचन काया का योग बोला, लेकिन बाहर किसी जगह कोई संबंध बनता है तो उसे संयोग बोला जाता है। तो ये सुधर प्राप्त संयोग को सुधारते हैं, सही समझ, और धर्म निष्ठार्थी, जो धर्म निष्ठार्थी का उसका जो मन वचन काया जो है वो वंदनीय हो जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ ऐसा है। अच्छा, उसके आगे वाली जो दो लाइन है ना, खुराकी आपवा थी खड़ा, कषायों ने भरिया स्वच्छंद, यानी हमारे से ही आधार दिया जाता है, हमारे आधार से खुराक देना यानी आधार देना, अपनी कमजोरियों को, अपने मनमानी को हम आधार देते हैं, इसीलिए ये सब कमजोरियां खड़ी है। जैसे कोई भी चीज है उसको आधार निकाल देते तो गिर पड़ता है ना, हाँ। तो ये कमजोरियों को हमसे ही आधार मिल जाता है, कषायों को। हाँ, अजागृति से, जागृत नहीं है, इसके कारण आधार मिल जाता है और वो अब भी खड़े हैं, वो खड़ा होने के बाद बताया ना, हाँ। अभी भी हाजिर है यानी, और उसके कारण स्वच्छंद हो जाता है। हाँ वो नहीं, वो भरिया स्वच्छंद, कषायों ने भरिया स्वच्छंद, यानी स्वच्छंद अपनी मर्जी, अपनी मनमानी करनी। भरिया स्वच्छंद मतलब कि वो स्वच्छंद हो जाता है ना, अपनी मर्जी से चलाना अपनी और मर्जी। चलना, दूसरों को गिनती में रखना नहीं। अच्छा, तो ये जो ये तो अपना मतलब ये परिणाम स्वरूप नहीं, ये तो कौन स्वरूप है ना? अरे वो सब परिणाम ही है, लेकिन परिणाम में आप कहाँ है वो महत्व का है। ऐसा हो जाता है अगर आप प्रतिक्रमण करते हैं तो उसको आधार नहीं दिया, लेकिन अगर आप प्रतिक्रमण नहीं करते हैं तो आपने उसको आधार दिया। और ये प्रतंत्र और तंत्र में क्या अंतर होता है? प्रतंत्र या प्र का मतलब है प्राकृष्टता से, विशिष्टता से, तंत्र यानी वो जुड़ा हुआ रहता है, विशिष्ट रूप से। अच्छा, जुड़ा हुआ। हाँ वो जुड़ा हुआ यानी उसकी कंटिन्यूटी रहती है, आप समझे। सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म, तंत्र यानी अपनी पकड़ को मजबूत करता है, विशेष रूप से अपनी गलतियों को वो आधार मिल जाता है और वो रहता है, उनको आयुष्य मिल जाता है, वो फिर जाता नहीं है, विशेष रूप से रहता है। हाँ विशेष रूप से। अच्छा, और ये जो पूरा जो पद है, ये मतलब ये दोनों के लिए, जो ज्ञान के पहले और ज्ञान के बाद दोनों के लिए लागू होता है ना, ये तो जो ऐसा है ना, जिनके पास दृष्टि है उनके लिए भी है, दृष्टि नहीं है उनको लिए भी है। सामान्य तौर पर बोध जहां भी मिलता है, जहां से भी मिलता है, वो बोध का क्या बोलते हैं, उसका प्रमाण ही ऐसा होता है कि वो कोई भी उसको देखेगा तो उनको उनसे सीख मिलती है। जैसे कि शिव पुराण है, वो शिव पुराण बच्चा भी सुनेगा तो उसको एक सीख मिलती है, कोई बड़े सुनेंगे तो उनको भी सीख मिलती है, जो उनको मोक्ष में जाना है तो उनको भी सीख मिलती है। इसमें ऐसा जो हाँ मैं समझ रहा हूँ, आपने जो बताया सब वो दोनों को सीख मिलती है। इसमें जो मतलब एक वर्ड ऊपर के सेकंड पैराग्राफ में आता है, मान पेक्षा नोंद, मतलब ये उसका ये कहना मतलब नान कि वो जो है मान की जो उपेक्षा होती है, मतलब मान जब उसको नहीं मिलता है तो वो उसको नोट करता है कि मुझे तो उसको फिर तिरस्कार भीतर मान है। हाँ जी, भीतर मान है, मान चाहिए। अच्छा, मान उसकी मान की इच्छा है उसकी जो है, और वो हाँ, इसके लिए वो नोंद यानी वो उसका अपने मन में रखते हैं कि मुझे मान चाहिए।
कोई ने जहाँ तिरस्कारियो, वो तिरस्कार क्यों करते हैं कि उनके अंदर मान पड़ा है, अंदर अपेक्षा खड़ी है, अच्छा, वो लोगों की वो नोन पड़ी है। तिरस्कार कब होता है? जब मुझे आपकी कोई चीज पसंद नहीं आती है। वो हाँ, है प्राकृतिक कमजोरी, लेकिन मैं आपको आप ऐसे हैं करके मानता हूं, इसीलिए मुझे आपके प्रति तिरस्कार भाव आता है। और वो तिरस्कार भाव वो पहुंचता है भीतर के भगवान को। जी, समझ गया। इस तरह। ठीक है, फिर मैं आगे पूछता हूँ अगर टाइम होगा। जय सच्चिदानंद। परेश भाई, करम सर। जय सच्चिदानंद साहेब। जय सच्चिदानंद। આપણે વિતરાગ પરમાત્મા કોને કહેવા અને કોને એમાં સમાવા, કે થઈ ગયેલા હોય એને કે હજુ હયાત છે એને બી? जो वितराग परमात्मा हुए, हो गए, हाँ, आज है और होने वाले हैं, हाँ, वो सभी वितराग परमात्मा है। वितराग अच्छा, यानी जो राग द्वेष से पर हुए हैं। ओके। और परमात्मा यानी आत्मा की आखिर की स्थिति में है। बराबर, समझे? हाँ, समझा। हाँ, और वह देह के साथ होते हैं तभी कहा जाता है। हाँ, वही राम भगवान परमात्मा भी नहीं बोलते, महावीर भगवान परमात्मा नहीं बोलते, लेकिन सिमंदर स्वामी परमात्मा बोलते हैं। बराबर। दादा भगवान को देहधारी परमात्मा बताया था ना, ऐसा। हाँ। जब हाजिर होते हैं, देह के साथ होते हैं, तब उनकी स्थिति का बखान होता है। बराबर, ओके। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन बहुत जल्दी आ गए वापस। બાજુમાં જતું ને ઊભું થવું પડે ને એટલે. હા, ઓકે. અચ્છા, આપણે ભાવ ને અભાવ, જે અંદર ભાવ ને અભાવ પડેલા છે તે આપણે ત્રીજું કલમ વાંચીએ, અભાવ તિરસ્કાર. ચોથી એનાથી જાય. हाँ, यानी ये प्रार्थना कलम, चौथी कलम बोलने से हम निश्चय व्यक्त करते हैं, जाहिर करते हैं, अपना निश्चय जाहिर करते कि अभाव तिरस्कार मैं नहीं करूंगा, ना करूंगा, ना करवाऊंगा, ना कर्ता के प्रति अनुमोदन करूंगा। तो वो निश्चय करने से क्या होता है, जब जब ऐसा अभाव होता है किसी के प्रति या तिरस्कार भाव आता है, तो अंदर घंटी बजेगी, गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ करके। तो અત્યારના જમાનાની વાત હું કરું છું કે આપણા ઘરે લગભગ 18 માણસો રહેતા હતા. માસી તમે આવો, કાકા તમે આવો, આવો ને જતા રહો, પણ એવું કોઈ કહેતું નથી કે માસા ને માસી રહેવા આવો. બધા કહેશે ઘર મારી બાજુમાં લેજો, હું તમે ત્યાં રહેવા આવું. અલા ભાઈ, મેં તો હવે આ ઉંમરમાં ઘર લેવાનું છે બાજુમાં? એટલે આ મને લાગે છે માણસનો ગંદવા નથી થતો. ઇન્ડિયામાં શું થતું હતું, બધા ભેગા રહેતા હતા. નાના હતા ત્યારે આપણે પથારીમાં સુઈ જઈએ તો 5-6 જણા સુઈ જાય. અમારા દાદા આવ્યા હતા ને ત્યારે અમે લિવિંગ રૂમમાં પથારીઓ કરતા હતા, તો નાક બોલે, કોકનું ખેંચા ખેંચ થતું હોય, કોકનું આ થતું હોય. તો કવિરાજ બોલ્યા હતા કે આ પહેલી વાર, અને દાદા બી જોઈને ખુશ થઈ ગયા કે આ પહેલી વાર અમે અમેરિકામાં આવું જોયું કે બધા સાથે સૂતા હતા. 8 પથારીઓ જોડે ના, એટલે આ તો સંજોગોને લીધે પાડી પથારીઓ. અહીંયા બધા રૂમો મોટા થઈ ગયા. પછી મેં દાદાની આપતવાણીમાં વાંચ્યું હતું એક વખત કે અત્યારના લોકોના મન એવા થઈ ગયા છે કે ઘરો મોટા મોટા બાંધાવે, બાથરૂમો 5 ફૂટના અંતરે રાખે, તો રોગે એવા થાય ને કે છે કે બાથરૂમમાં જઈને બેસે એટલે 5 કલાક રોગ જાય કે છે. જ્યારે પહેલાના વખતમાં બાથરૂમ જવા કે લેટ્રિન જવા છેક દૂર જવું પડતું હતું. હવે બેનો ડિફરન્સ શું હોય છે? આ બધું વાંચું એટલે બધું મને મનમાં કેલ્ક્યુલેટ થાય है ना कि आज जब बाहर का सुख बढ़ जाता है
तब अंदर का घट जाता है। जब बाहर की सुविधा नहीं होती है तो भीतर का सुख अपने आप बढ़ता है। यानी बाहर जितना सुख ढूंढेंगे, करने जाएंगे तो अंदर का कच्चा पड़ जाएगा। इसीलिए आज अंदर से दुखी है। आज बोलते हैं ना सब सुविधा है शांति, लेकिन अंदर शांति नहीं है, बताते हैं। અમે એક વખત દાદા સાથે અમે ગયા હતા તો દાદા કે પેલા પૂડા મેથીના પૂડા ખાવા છે, સાંજે પૂડા કરજો કે છે નીરુબેન ને. તો એ બેનના ઘરે કશું વાસણ કશું નતું, ખાલી ઢાંકણામાં પૂડા કર્યા હતા. અને આજે અમારે પૂડા કરવા હોય તો અમારે 4 લોડીઓ જોઈએ. अरे वो बराबर है आज। ના એટલે એનું મગજનું કેલ્ક્યુલેશન હું પૂછું કે આવું કેમ થાય અંદરથી. It is time of abundance. एबेंडेंस यानी बहुत सारी चीजें, 2 चीज की जरूरत है लेकिन 40 चीज रखते हैं, मिलती भी है रखते भी है। आ मोहनु कारण ये समय है, ये समय का तकाजा है। समय समय कलयुग इसीलिए कहा कि भीतर का सुख कम होते जाता है और बाहर का सुख बढ़ता जाता है। એટલે ઇનર સુખ જેટલું વધે એટલું બહારનું સુખ તમને ફીકું લાગે, બરાબર છે? बाहर की पड़ी नहीं होती है, बाहर जैसा भी है ये, लेकिन भीतर कम हो जाता है तब वो बाहर ढूंढते हैं। भीतर का जवाब नहीं है ना किसी के पास। जवाब हो तो कुछ करे ना, એટલે આપણું આ ઇનર સાયન્સ છે, બરાબર છે? करेक्ट। પછી બીજો પ્રશ્ન છે, શાયક ભાવ સિવાય બીજો કોઈ ભાવ નથી, નાયક ભાવ સિવાય બીજો કોઈ ભાવ નથી, એનું નામ કેવળ જ્ઞાન. अभी क्या है वो तो कल पूछा था आपने ના પૂછ્યા તા પણ મને ખબર પડે ને તમને, મને મારું મગજ એવું છે. नो प्रॉब्लम। ऐसा कोई रूल नहीं है, नहीं समझ में आए तब तक पूछना चाहिए। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश देखो ऐसा है, કારણ કે ઘણા આપ તો પૂછો જાડું જાડું સમજાઈ નાખે છે। अभी वो नहीं देखने का है। ऐसा है कि हमारी जो अंतरात्मा दशा है ना, केवल ज्ञान वो परमात्मा दशा है। और जब तक अंतरात्मा दशा है तब तक आप दृष्टा भाव में ही होंगे। दृष्टा भाव की भूमिका ही अंतरात्मा दशा है। अच्छा अच्छा, अंतरात्मा दशा यानी क्या है, बाहर का काम बाकी है। अंतरात्मा दशा 2 काम करती है। बाहर जब फाइल आती है तो फाइल का संभव से निपटारा करती है, करवाती है, और जब फाइल नहीं होती है तो वही अंतरात्मा दशा परमात्मा की भक्ति करती है, परमात्मा की आराधना करती है। तो ये 5 आज्ञा से होता है ना? 5 आज्ञा में तो सब कुछ है, मोक्ष तक का सिक्का लगाया है, ज्ञान है। लेकिन वो जैसे जैसे हमारी स्थिति, हमारी समझ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वही 5 आज्ञा हमारे लिए कुछ और तरीके से ही काम करती है। बहुत सामान्य तो बोले 2 दृष्टि से देखो, और वही 2 दृष्टि पक्की होने पर वही केवल ज्ञान की स्थिति हो जाती है। अच्छा, तो यानी ये दृष्टा भाव समझने की भूमिका है, पुरुषार्थ की भूमिका है। पुरुषार्थ खत्म होने पर केवल ज्ञान होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी वही दृष्टा भाव ज्ञाता भाव में परिणमित होता है। अच्छा, क्योंकि देखिए अंतरात्मा दशा में आप देखेंगे क्या देखेंगे, प्रज्ञा प्रकाश में जो कुछ दिखाई देता है, यानी प्रज्ञा से दिखाती है वो आप देखेंगे। यानी आप समझते जाते हैं, मैं अंतरात्मा दशा में बात को समझता जाता हूं कि ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, मैं निश्चय हूं, मैं निश्चय स्वरूप हूं, ये व्यवहार है, ये व्यवहार है करके व्यवहार सब
क्योंकि जब तक जितने संयोग है उसका संभव से निपटारा करना, क्योंकि जितने संयोग है ना वहां पर मैं चिपका हुआ हूं, वहां कोई ना कोई प्रकार का मेरा अभिप्राय है और अभिप्राय के साथ साथ उसके पीछे मेरापन है। आप समझे? આજે વર્તમાનમાં ખબર પડે પછી સંજોગો તો આપણે જેમ આયુષ્ય કર્મ લઈને આવ્યા હોય એટલા બધા સંજોગો બદલાયા જ કરતા હોય, બદલાયા જ કરતા હોય, બદલાયા જ કરતા હોય, તો બધામાં જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદ જ રહેવાનું અને 5 આજ્ઞા પાડવાની। તો देखने का ज्ञाता दृष्टा नहीं, ज्ञाता दृष्टा तो स्वभाव है, तत्व स्वरूप आत्मा का स्वभाव है। अच्छा अच्छा। और मैं वो पुरुषार्थ में हूं कि जो देखता रहता हूं यानी समझता रहता हूं, वो मेरी समझने की भूमिका है आज। अच्छा, यानी समझने की भूमिका क्या करती है, 2 व्यू पॉइंट में रहते रहते वो ये व्यवहार है, ये निश्चय है, ये व्यवहार है, ये निश्चय है। तो उस तरह से हमारे जो अवस्था के प्रति अभिप्राय है वो निकलते जाते हैं, फिर वो ये व्यवहार ही है ऐसा रह जाता है। तो કે મહાવીર પોતે એક જ પૂતગલને જોતા હતા, તો કઈ રીતે જોતા હતા? પછી આપણે તો બે વ્યવહાર, બહારનું જોવાનું ને અંદરનું જોવાનું, એ કઈ રીતે? अभी ऐसा उसका मतलब क्या है, पूतगल के प्रति एक ही अभिप्राय रहा कि पूर्ण हुआ था, वो गलन होता है। कैसा तो सभी के लिए, सभी के लिए ऐसा है। हाँ, सभी के लिए ऐसा है ने, पूर्ण एक જ स्वभावी છે એમ દાદા કહેતા હતા ને, जैसा पूर्ण वैसा गलन। हाँ, अपना और दूसरे का। अपना कोई भी अवस्था के प्रति अपना कोई अभिप्राय नहीं रहा। ओहो, अभी तो क्या है, वो मुकुल भाई आए तो बहुत अच्छा हो गया। ये तो काउंटर वेट છે, काउंटर वेट। ये आप सब उतरा है तो बहुत अच्छा हो गया। ये मारो एडजस्टमेंट, ये कहां से आ गए? नहीं, एडजस्टमेंट मारो मगजનું છે, લેવાનું છે મારે। वो अलग है, लेकिन हमारा जो अभिप्राय है और वो अभिप्राय हमें परेशान करता रहता है, वो मालूम हो गया। जो अभिप्राय हमें शुद्धात्मा देखने नहीं देते, हमारी दृष्टि किसी भी व्यवहारिक अवस्था में रुक जाती है, चिपक जाती है, शुद्धात्मा के दर्शन करने नहीं देती, तो वो कमजोरी है। तो समझने के लिए स्कूलिंग है, किंडरगार्टन, फर्स्ट ग्रेड, हाई स्कूल, पीएचडी और આગળ। તો આપણે કઈ સ્કૂલમાં છીએ ખબર પડે એટલા માટે થઈને આપણને સેટિસ્ફેક્શન માટે થઈને થાય કે મને અહીંથી કરેક્શન સારું મળશે એટલા માટે પૂછીએ કે उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक बात कही है, तो ऐसा कोई उसको क्या बोले टिप्पण नहीं किया है, ये तो बात समझना है कि हमें ऐसा है ना कि सभी मोक्ष मार्गी है, तो किसी के पास आपको 50% मिल जाएगा, किसी के पास 5% मिलेगा, किसी के पास 1% भी मिलेगा, लेकिन सभी के पास वितरागता है। बराबर। आपको आपका हिसाब देख लेने के कि आज आपको अगर 50 मिलने वाला है तो 50 मिलेगा, अगर आज आपको 1 ही मिलने वाला है तो 1 जो मिलता है उससे कुछ हो जाना है। अपनी तैयारी होनी चाहिए। हाँ, सभी ऐसा है ना, प्राप्त संजोगों का लाभ ले लेना है। सुमेर शादी वो अलग बात है, जो संजोग मिला उसमें से हमें दूध निकाल लेना है अपना। बराबर है, बराबर है। पानी छोड़ देना है, पानी उनको संभालना है, हमें तो दूध से मतलब है। बराबर बस। हजू पर भाव अभाव नो फरीवार पूछीश, हजू मगजमां નથી सेट। देखो, अगर दिक्कत नहीं हो तो एक बात बताऊं? हाँ बताओ। 4 प्रकार के भाव बताए हैं दादा भगवान ने। ये तो दादा ने हमको लिख के दिया था। हाँ, तो फिर मैं दोहराऊं नहीं, वो फिर बोलो। अभाव भाव, तिरस्कार, अहिंसक અને પીડાકારી। हाँ, तो 4 भाव में 82 માં दादा એ લખ્યા। और
हिंसक भाव और पीड़ाकारक भाव ज्ञान मिलने पर चले जाता है। फिर भी हमको बोलता था कि तुमको ये बोलने का, हे दादा भगवान हमारे में से पीड़ाकारी भाव निकल जाओ, हे दादा भगवान। अरे बराबर है, नए नए को ज्ञान दिया है तो बोलना पड़ेगा ना। शादी के पहले दिन ही ससुराल अपना घर लगा था? मारा तो लागतो तो तो शादी से पहले ही ससुराल में आ गए थे ना। पहले आई गए थे એટલા માટે તો મને આખું ડિઝાઇન જ જુદી હતી ને મારી તો। हाँ ठीक है, ऐसा है। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय। ओके अम्मी बहन बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। 129 वाला सूत्र निकालिए ना। हाँ ये वाला બોલીએ। આપણા મન વચન કાયાને આપને ઓળખવાના છે। જીવનારો નોખો છે અને જીવતા શીખવાનું છે। જે જીવાઈ રહ્યું છે એની પાસેથી કે એ કેવું જીવે છે, એ જીવી રહ્યું છે એમાં આપણે ભરાઈ પડેલા હતા તે ફરીથી ના ભરાઈ પડીએ એવી રીતે આપણે એની પાસેથી શીખવાનું। જે રીતે ભરાઈ પડેલા એનાથી ઊંધી રીતે એમાંથી નીકળી જાઓ, આ જીવન વિજ્ઞાન છે। तो आमा हाँ समझ में आया, लेकिन ये सीखना जो बताया ना घड़ी घड़ी के, क्या सीख के निकलना है उसमें से? देखो जो जिया जाता है, हाँ आज जो जिया जाता है यानी ये मन वचन काया का जो बंडल है ना हमारा, हाँ जिया जाता हुआ भाग है। राइट, इसे हम जिया जाता हुआ आत्मा कहेंगे, प्रतिष्ठित आत्मा कहेंगे। हाँ हाँ। और वो क्या नॉर्मल है, सहज है? नहीं नहीं है। अभी जो आप जी रहे हैं, जिया हुआ भाग से अलग हुए आप। हाँ अंतरात्मा की भूमिका में आप जागृत हुए वे है। हाँ तो जो जिया जा रहा है उनको भी देखते रहना कि वो कैसे जीता है। हाँ अभी बहन कैसे जीते हैं, हाँ वो भी देखना है, देखना है। बराबर। जो उनके साथ एकाकार हो पड़े थे, हाँ अब दोबारा आपको एकाकार नहीं होना है। बराबर। अभी एकाकार हुए थे, एकाकार हुए थे, उसका प्रमाण क्या है? वो आज बोलता है ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये बहुत अच्छा है। तो वो अच्छा बुरा जो अम्मी बहन को लगता है, वो पहले उनके अंदर जो अपना घर बना दिया था ना, उसका परिणाम है। हाँ यानी आगे जो अम्मी बहन के ऊपर निश्चय सवार हुआ था गलत मान्यता के कारण, वो आज खाली हो रहा है। तो आपको वो देखना कि वो सही है। तो बोले नहीं, ये वो सही नहीं है। तो वो आपको पता चलता है, क्योंकि जानने की शक्ति जो जी रहा है उसके पास जानने की शक्ति है, और जो जिया जाता है वो तो मशीन है। हाँ जिया जा रहा है वो मशीन। आत्मा वह निश्चेतन चेतन है, चेतन जैसा लगता है लेकिन उसमें चेतनता कुछ नहीं है, जानने की शक्ति नहीं है। राइट। मन वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार जो शरीर वाला है, उसमें जानने की शक्ति नहीं है। जानने की शक्ति आप में है। तो अभी ये जो जिया जाता है, अभी भी जो जीते हैं,
वो संयोग में आगे आप कैसे उनके साथ जो व्यवहार था उसे निश्चय स्वरूप कैसा माना था करके आप जीव थे, वो खुला होता है। तो आपको पता चलता है कि ये गलत है। वो बोलता है मेरा करके बोलता है, तो फिर आप बोलते हैं वो मेरा नहीं, वो आपका। आपका यानी वो मम्मी बहन का, मेरा नहीं। बराबर। जहां जहां मेरा 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 करके बोलते हैं ना, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो किसकी बात करते हैं। हाँ वो तो मेरा बोलते हैं, वो तो मेरा नहीं है। बराबर। तो वो जो मेरा बोलता है उसके साथ आपको भी बैठना नहीं है। हाँ बैठना नहीं है। उसके हाँ, साथ नहीं बोलना कि वो मेरा है करके। बराबर। ठीक है, तो इस तरह हाँ। से आप बाहर आते जाते हैं। आपको दृष्टि से बाहर बिठाया है, अभी लक्ष्य और अनुभव से पूरी समझदारी से बाहर ही बैठना है। अरे वो कोई सुबह में 6 बजे उठ गए, अरे वो काम करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते, इनको अच्छा लगा उनको बुरा लगा, अम्मी बहन को अच्छा लगा अम्मी बहन को बुरा लगा, अम्मी बहन इतने बजे उठे, उतने बजे सो गए, ये हुआ वो हुआ, अम्मी बहन के साथ ऐसा हुआ, अम्मी बहन के साथ वैसा। मेरे साथ मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं। बराबर। मैं तो शुद्धात्मा दृष्टि वाला शुद्धात्मा हूँ, मैं अम्मी बहन नहीं हूँ। बराबर। तो फिर इस तरह से जिएंगे तो आप सीखते जाएंगे कि कहाँ कैसी गलती से अम्मी बहन जी रहे हैं, तो उनकी सब गलतियां यानी जो सब असाहजिकता है, एबनॉर्मलिटीज है, निकलती जाएगी। और एबनॉर्मलिटीज आखिर में क्या है, तो अम्मी बहन के व्यवहार से किसी न किसी को दुख होता है। अम्मी बहन से सामने वाले को दुख पहुंचता है। हाँ। अब जब तक ऐसा होता है तो शांति नहीं होगी, वो फिर से पलटकर बाउंस होकर वो वापस वो दुख आएगा। बराबर। तो उसमें आप नॉर्मल होते जाते हैं। और ये समझ के रहना और ये जागरूकता से रहना, तो उसे जीवन विज्ञान कहा। वो जीवन विज्ञान हमें मोक्ष प्रदान करता है। हाँ सही बात है, ऐसा है। हाँ बहुत अच्छा समझ में आया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो एक इसमें आपने जो बताया ना कि अभी वो मन वचन काया और अहंकार ये सब, तो अभी ये जीवित नहीं है ना? तो उसमें आत्मा है ही नहीं, उसका मतलब क्या बताया? मन वचन काया अहंकार ये सब जीवित नहीं है, इसमें अभी आत्मा नहीं है, ऐसा ना? इसीलिए डिस्चार्ज अहंकार वो मरा हुआ अहंकार है। हाँ बराबर। अहंकार वो कर्ता भाव का अहंकार है। हाँ। और मरा हुआ अहंकार वो भुगतने वाला अहंकार है, भुगतान का अहंकार है, भुगतान वाला होता जाता है। तो ऐसा बुलवाएगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये बहुत अच्छा है। हाँ। ऐसा बोलेगा तो हमको समझना, अरे किसी को अच्छा लगता है, हाँ। अरे किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो मैं क्या करूं? मुझे बराबर। अच्छा बुरा ऐसा कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। मैं तो जानता हूँ कि इनको अच्छा लगा, इनको अच्छा नहीं लगा। और जहाँ जहाँ कहीं वे कच्चे पड़ते हैं तो उनको बैठे बैठे सुधार दे देता हूँ। तो मेरी अंतरात्मा दशा में व्यवहार दृष्टि की आज्ञा में रहता हूँ, ताकि ये व्यवहार जो जुड़ा हुआ है वो सहज होता जाए। अपने आप तो होगा नहीं वो। हाँ नहीं। सामान्य तौर पर क्रम मार्ग में ये सब प्रतिक्रमण हो जाने के बाद, फिनिश होने के बाद ज्ञान मिलता है, खुद की पहचान होती है। इसलिए ज्ञान मिलने के बाद उनको वो शपथ हो जाता है तुरंत, थोड़े ही समय में, समय नहीं होता है। बराबर। लेकिन यहाँ तो व्यवहार की उपस्थिति में ये पहचान हुई है, ज्ञान मिला है। इसीलिए भगवान के पास बैठकर बैठे बैठे व्यवहार को ठीक करना है, यानी शुद्धात्मा दृष्टि के साथ व्यवहार का संभव से निपटारा रहता है।
व्यवहार दृष्टि से रहना होता है, वहाँ व्यवहार दृष्टि रहती ही नहीं है। फिर रहती है यानी वो समझ में आ ही जाती है। हाँ दृष्टि पक्की होने पर वो व्यवहार दृष्टि का भाग कुछ रहता ही नहीं है, वो थोड़े ही समय में क्षपक होकर फिनिश हो जाता है, वो केवल ज्ञान हो जाता है। अच्छा ओके, ठीक है। और हमारा ये इलेबोरेट टाइम है। हाँ, कम से कम एक जन्म बताया, ये एक भाव बताया है। हाँ, एक जन्म बताया, ठीक है, बराबर। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। नरेश भाई, દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ। આજે સવારના વોટ્સઅપ પર મેસેજ છે, આપણે છીએ જ અસંગ, એનો અનુભવ ના થવા દે એ બધો કુસંગ કહેવાય। एक मिनट, क्या बताया? આપણે છીએ જ અસંગ, એનો અનુભવ ના થવા દે એ બધો કુસંગ કહેવાય। દિવ્ય દેશના, સવારની દિવ્ય દેશના। हाँ, आने दो। गुजराती में है। આજે મનુભાઈ મોકલેલો। क्या है? આપણે છીએ જ અસંગ, એનો અનુભવ ના થવા દે એ બધો કુસંગ કહેવાય। हाँ, अभी एक मिनट, बताते क्या है कि मैं हूं ही, मैं हूं ही, असंग हूं। हम बोलते हैं ना असंग हूं, लेकिन जो हमें असंगता का अनुभव नहीं करने देता उसे कुसंग कहा। समझ में आया? तो ये कुसंग क्या है? असंग कौन है? हेलो, असंग कौन है? આપણે आपने नहीं, आप क्या बोलते हैं? मैं असंग हूं करके बोलते हैं ना। हाँ यार, तो संग वाला कौन है? संग वाला कौन है? असंग यानी जो किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है, किसी से भी लेपाईमान नहीं हुआ है, वह तो संग वाला कौन है? लेपाईमान वाला कौन है? कौन है? आप असंग है, आप शुद्धात्मा है, आप असंग है, तो संगी वाला कौन है? બે ચાર વખત વાંચ્યો પણ સમજણ પડી એટલે પૂછ્યું। બે ચાર વખત વાંચ્યો સમજણ ન પડી એટલે પૂછ્યું। हाँ, लेकिन मैं पूछता हूँ तो वो समझ में नहीं आया। तो ये संग वाला मन वचन काया वो संगी क्रिया वाला है, वो इकट्ठा होके कार्य करता है। और मुझे कार्य करने के लिए किसी संग की जरूरत नहीं है। मैं असंग हूँ, मैं अपने आप हूँ, मैं स्वयं प्रकाश हूँ। बराबर। हाँ, तो अभी ये मैं असंग हूँ उसका अनुभव करने कौन नहीं देता है? तो ये नरेश भाई के प्रति जो मेरापन होता है ना आपको, तो नरेश भाई संगी है, उनका कार्य क्या है? सब इकट्ठा होके कार्य होता है। आप समझे? बराबर। नरेश भाई अकेले काम नहीं कर सकते, वो सब इकट्ठा होगा तब वो कार्य होता है। कोई भी कार्य नरेश भाई में होने के लिए सब संयोग इकट्ठे होने पड़ते हैं। सही है? वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो बताता है इनो अनुभव ना थवा दे वो तो कुसंग केवाय। हाँ, ये जरा बराबर नरेश भाई कुसंग है और आपको लगता है भाभी जी कुसंग है, भाभी जी परेशान करते लगता है।
ये परेशान करते, बच्चे परेशान करते हैं, वो परेशान करता है, वो नीचे वॉचमैन को परेशान करता है, बैठे बैठे नींद लेता है। ठीक है, आप समझे? ठीक है, समझ तो गया। ये ऐसा है ना कि अगर आपको जिम्मेदारी मिली है या दी गई है, जैसे अर्जुन को वो जिम्मेदारी थी तो उन्होंने युद्ध किया, बराबर। पर युद्ध करने के बाद उनकी जो जिम्मेदारी थी वो चुके नहीं, और इसीलिए वो मोक्ष में गए उसी जन्म में। महाभारत का युद्ध वो कर्म का फल था, जिम्मेदारी थी, व्यवहार की जिम्मेदारी थी। ठीक है, ठीक है, वो खत्म करने के बाद वे चल पड़े फिर कि अभी व्यवहार का काम हो गया, तो अभी निश्चय का काम। तो ये जो संघ है ना, नरेश भाई का संघ, बराबर। वो खाली होता जाता है, लेकिन उनके कोई क्रिया में आप नहीं है, क्योंकि उनकी कोई क्रिया में चेतनता नहीं है, उनकी कोई क्रिया में चेतन भाव नहीं है। आप समझे? हाँ कि ना बोलिए तो हाँ, समझ गया। मेरी समझ में आए, आगे बोलूं बंद करूं? समझ में आया। देखो, शरीर है, उनमें जाने की शक्ति नहीं, वो क्रिया की शक्ति है। ठीक है, वाणी में बोलने की शक्ति है, बराबर। चेतनता नहीं है। मन है, वो विचारों का गुच्छा है, तो विचार निकलता रहता है, फूटता रहता है, फव्वारे निकलते रहते हैं। फिर चित्त है, वो भटकता रहता है, इनको कोई मर्यादा है नहीं, कहीं भी जाके वो चले जाता है। बुद्धि है, वो भगवान का इनडायरेक्ट प्रकाश है, और वो अहंकार है, वो तो बस अहंकार करता रहता है, और वो अहंकार आज केवल भुगतान का अहंकार है, क्योंकि शरीर से जुड़ा हुआ जो अहंकार है ना, वो करने वाला अहंकार नहीं है, कर्ता भाव का अहंकार नहीं है, वो भोक्ता भाव का अहंकार है। आप समझे? तो ये सारे में कोई चेतनता नहीं है, और ये सब कार्य जो होता है शरीर का, वो सब ये सब वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से बताया ना, ऐसे इकट्ठा होके सब कार्य होता है। बराबर। ये सब संयोग इकट्ठा होके कार्य होता है, और उनको आप मेरा है करके मानते हैं ना, वो संग कुसंग है। तो उनको पहचानो, ये नरेश भाई है, वो मैं नहीं हूं। आप समझे? ठीक है, समझ गया। कार्य उनमें से केवल कार्य है, कार्य शक्ति है, जानने की शक्ति नहीं है। ठीक है, समझ गए? जय सच्चिदानंद। भारती बहन। जय सच्चिदानंद। मैं तमने आ सूत्र मोकल्યું છે ને, મને સમજાવો ને। મહી પ્રગટ પરમાત્મા पैदा થયા છે, એને લઈને તમને અર્પણતા पैदा થઈ, એટલે શું કહેવા માંગે, કેવી રીતે એને શું કહેવા માંગે છે? अच्छा, देखो, भीतर का जो आत्मा है वही परमात्मा है। ये समझ पड़ी। हाँ, वो पैदा हुआ यानी प्रकट हुआ है। हाँ। और उनको लेकर के आपको अभी हकीकत में क्या है, ये दादा भगवान को लक्ष्य में रखकर बताया है कि दादा भगवान के अंदर जो परमात्मा प्रकट हुए हैं, उनको लेकर के आपको अर्पणता पैदा हुई है कि हमारा शीश झुक जाता है बराबर को देख करके ही, और वो परमात्मा है और प्रकट हुए हैं, वही मेरा स्वरूप है, वही मैं खुद हूँ। ओके, એટલે અર્પણતા ને સમર્પણતા એ બે સરખું કે છે?
हाँ અર્પણતા ને સમર્પણતા એ કઈ કહેવા માંગે સમર્પણ આપણે દાદાને કર્યું અને અર્પણતા ઇઝ ઇટ સિમિલર વર્ડ समर्पण यानी सब कुछ अर्पण कर दिया, कुछ रखा नहीं, બરોબર जो मेरा नहीं है वो सब अर्पण कर दिया, वो समर्पण हो गया। उसे बरोबर। साष्टांग नमस्कार भी बोलते हैं। બરોબર कुछ अपना रखा नहीं, નહીં રખા वो બરોબર मेरा स्वरूप है, वो मेरा जो मेरा स्वरूप नहीं है वो सब अर्पण कर दिया, इसीलिए समर्पण हो गया। इसीलिए अब आपका पास कुछ रहा नहीं, आपका कुछ रहा नहीं, जो आपका नहीं है वो आपने दे दिया। इसीलिए अब जो आपका नहीं है उसके साथ उलझो नहीं, उलझना नहीं, उनके साथ बराबर। जो भी है जो भी होता है देखते रहो, उनको हेल्प करो, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं है, आंखें आपके पास है, जानने की बराबर। शक्ति नहीं है। उनके पास शुद्धात्मा। जानने की शक्ति है, वो बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि परेशान करती रहती है, उनको उल्टा सीधा बताती है બરોબર और इसके लिए मार खाते रहते हैं। लेकिन प्रज्ञा शक्ति की आंखों से देखेंगे, यानी ये तीसरी आंखों से देखेंगे, तीसरी आंख से देखा हुआ ही सही मानेंगे, तो फिर ये चमड़े की आंखों से दिखाई देता आपको उलझाएगा नहीं, परेशान करेगा नहीं। હા ठीक है, બરોબર ऐसा है। બહુ સરસ બહુ સરસ जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ प्रज्ञा बहन। प्रज्ञा बहन अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। बोलिए प्रज्ञा बहन, आपकी आवाज नहीं आती। आवाज नहीं आता। आप वीडियो बंद कर दीजिए तो आवाज आएगी। ओके ओके संभळाय छे। हाँ बोलिए, संभळाई बोलिए। તમને ઓકે ઓકે હવે આજે સવારનું જે સત્સંગમાં પેલું એનાલિસિસ ને તારણ કાઢવાનું હતું ને એના ઉપર। हाँ लेकिन आपको नोट करना चाहिए ना एग्जैक्टली वो क्या था। आई एम सॉरी, नोट करना था ना एग्जैक्टली क्या था। अभी मुझे वो याद नहीं है, मुझे थोड़ी नहीं, ध्यान कोई में आए भी तो मैं बता सकता हूँ। हाँ हेलो हाँ बोलिए, किसका एनालिसिस था, जरा मुझे याद तो दिलाइए क्या था। हाँ जगह बदलिए, आपकी आवाज कटती है, जगह बदल दो। बोलिए। प्रज्ञा बहन, प्रज्ञा बहन। ओके हेमा बहन बोलिए, तब वो आ जाएंगे तो देख लेंगे। આ તમે દિવ્ય દેશના આવે છે તો અમને મોકલો ને દિવ્ય દેશના। दिव्य देशना ठीक है, हमारा हमारा डोंट लीव द ग्रुप। अगर लीव करेंगे ना तो फाइन भरवाएंगे। ओके કેટલા પૈસા અત્યારથી पैसा કહેજો हम સગવડ કરી। डिसाइड करेंगे, संघ डिसाइड करेगा। ઓકે ओके ओके વાંધો નહીં, અમે આપવા જ બેઠા છીએ। आज जाने तो फिर निकले क्यों, ग्रुप में से निकल क्यों गए फिर। वो तो खबर नहीं, स्विच दबाई गयो तो निकल गयो। बस बस छटकने के लिए आपको थोड़े दरवाजा खिड़कियां चाहिए, कहीं से इसलिए तो निकल वापस जाते। मांगते हैं ना। जय सज्जन, नरेश भाई बोलो। જય સચ્ચિદાનંદ जय હવે सच्चिदानंद। સિમ્પલ છે પણ જરા સમજણ નથી પડતી પ્રાપ્ત તપ અને અપ્રાપ્ત તપ। प्राप्त तप का मतलब क्या है कि भाभी जी बोलते हैं कि आज यही खाना बनेगा, तो आप बहुत आनंद में आ जाएंगे, अरे वाह
वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होता है। आप समझे? और जब उन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया है तो अब आज मेरा उपवास है, डंडा लेके वो मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? समझे? પછી એમાં લખ્યું છે, હા એ તો એ રીતે ખ્યાલ આવી ગયો, પણ કળિયુગમાં ચેતીને ચાલજે। इसीलिए कहा समझ के चलेंगे तो आनंद में रहेंगे, वरना मार खाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा मार क्या है कि ऐसा कर्म बांध लेते हैं कि आपको बहुत भटकना पड़ेगा। आप समझे? ऐसा है ना आज का जीवन, ये शरीर की जो प्रक्रिया है ना सारे दिन की, वही ढेर सारा तप है, लेकिन हमें वो तप जैसा लगता नहीं है। खाने का तप जैसा लगता नहीं है, सोने का तप जैसा नहीं लगता है, स्नान करने का तप जैसा नहीं, दाढ़ी करने का तप जैसा नहीं लगता है, बाल काटने का तप जैसा नहीं लगता, क्योंकि जहां जहां अच्छा है, मोह है, वो बड़ी खुशी से हम करते हैं। नहीं होता ऐसा? दादा को व्यवहार मात्र तप लगता था, क्योंकि वो करना पड़ता था। दाढ़ी करवी तप लगता, वो करना पड़ता था। और हम तो जो अच्छा अच्छा लगता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीमे धीमे, क्योंकि वो हमारा क्या बोलेंगे, ले आए हुए मोह है ना, इसलिए वो धीमे धीमे निकलते जाते, उसको पहचानते जाते हैं कि ये भी मोह है, ये भी मोह है, ये भी मोह है, और वैसे वैसे हम निकलते जाएंगे। इसीलिए जागृत रहने का। ठीक है? ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चलो हेमा बहन, तब क्या है? मैं पूछ ली दो प्रश्न, दिव्य देशना मोकलवान। हाँ बस, ओके फाइन। प्रज्ञा बहन कहाँ गए? प्रज्ञा बहन बोली अभी जगह बदल दी। प्रज्ञा बहन અનમ્યુટ, ઓકે સંભળાય છે હવે? યસ, ઓકે, હવે આ જે આગળ જ વાત થઈ ને કે દરેકમાંથી આપણે એનું જાગૃતિ રાખીને એ કરવાનું, હવે એનું નામ જ તારણ કહેવાય। તારણ કાઢવું મીન્સ કન્ક્લુઝન કરવું, એવું? कारण का मतलब क्या है कि ये करने से इसका परिणाम क्या आएगा वो समझ लेना है। अच्छा, हाँ, जैसे कितना भी अच्छा श्रीखंड खा ले या कुछ अच्छा जो आपको अच्छा लगता है वो खाएंगे, लेकिन आपको उसका परिणाम आखिर का दिखाई देना चाहिए, तो वो खाने के प्रति आपकी लुब्धता अपने आप चली जाएगी। अच्छा, ओके। वो सभी में, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, ये ज्ञान ही खुद पारिणामिक दृष्टि है। हाँ, आपको परिणाम दिखा देती है, लेकिन हमारा मोह है ना, वो हमें देखने नहीं देती है, दिखाती है लेकिन हम देखना नहीं चाहते। हाँ 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 हाँ। इसीलिए वो जब परिणाम आता है तब हम परेशान होते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। वरना ये संसार व्यवहार ऐसा है ना, जैसे दादा भगवान को शादी करते वक्त वो मन क्या बोलते हैं, शादी के जगह पर या मोहिरामा उनको ऐसा विचार आया था, जब वो उनका वो साफा आंख के तरफ आ गया तो हीराबा दिखाने बंद हो गए। राइट। उनको तुरंत ऐसा उनको समझ में आया, अरे अभी आज शादी तो करते हैं लेकिन दोनों में से एक को तो जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ। लेकिन वो उन्होंने किसी को बताया नहीं था। या बताते तो परेशान हो जाते। राइट नहीं सोचते शादी के वक्त, ऐसा नहीं सोचते, ऐसा बोलते। ऐसा है। तो सब धीमे धीमे कोई भी बात आती है तो उसका तारण ये ज्ञान की वजह से निकलता जाएगा। अच्छा, यानी आपको समझ में आता जाएगा कि इसका आखिर का परिणाम क्या है। ओके ओके, राइट, ऐसा है। तो उससे क्या होगा कि व्यवहार में सब नॉर्मलिटी आती जाएगी।
ओके जो सब अतिरेक है, एक्सेस है, वो सब निकल जाएगा. ठीक है, राइट. ओके, એટલે દરેક સંજોગમાં જાગૃતિ રાખીને जागृति रखना क्यों कहा? जागृति का मतलब क्या है? उपयोग को एक जगह पे केंद्रित करना, उसे जागृति कही. अच्छा, ओके. यानी जो क्रिया होती है उसी में हमें जागृत रहना है. उपयोग रखना माने शुद्धात्मा के प्रकाश में देखना है. बुद्धि का प्रकाश करवाएगी अच्छा बुरा सब. हाँ, ओके. वो कर्म का परिणाम है. हाँ हाँ. और हम शुद्धात्मा दृष्टि से उसको देखते जाएंगे. लेकिन वो दृष्टि को ऐसा फोकस करेंगे तो दिखाई देगा. हाँ हाँ, ओके. ऐसा है. ओके. वो होगा तो हमें तुरंत पता चलेगा. हाँ, सभी व्यवहार की निरर्थकता हमें समझ में आती जाती है. राइट. और वह आने पर वो व्यवहार के प्रति कोई उल्लास नहीं रहता, लेकिन फिर भी ढंग से करते हैं. कोई उसकी गलती नहीं निकाल सकते. ऐसा है. ठीक है. ओके ओके ओके. यही सब. बोलिए हेमाबेन दोबारा. આપણે દાદાજી કહેતા હતા કેટલા વખતો પહેલા, મને હમણાં એકદમ સ્પાર્ક થયો. પહેલી હપ્તાવાણી કે બીજી હપ્તાવાણીમાં વાંચ્યું હતું કે બ્લેક હોલ એટલે શું કહેવાય. અને મેં એક અમારો મુકુલનો ભાઈબંધ અહીંયા આગળ નૂતન સાયન્ટિસ્ટ આવ્યો હતો, ત્યારે દાદાને પૂછ્યું હતું એણે, પણ એમાં બેન તો સેવામાં હોય એટલે કે યાદ ના રહ્યું, પણ એને આખી રાત એ હપ્તાવાણી વાંચી કાઢીને બીજે દિવસે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. દાદા કે પેલા ડોક્ટર ક્યાં ગયા, અને એ આખું બ્લેક હોલ નું બધી સિસ્ટમ સમજાઈ હતી. એ મને કહો ને બ્લેક હોલ શું હશે એ સાયન્સમાં. ब्लैक होल जहाँ कुछ भी डाले वो खत्म हो जाता है, चले जाता है. जल जाता है. શું? जल जाता है. કઈ પણ નાખો તો જતો રહે. એટલે આપણે જે જ્ઞાન વિધિમાં થાય છે કે પેલા તવામાં નાખીએ, સખત તપતો હોય આપણે, અને પછી પેલું જ્ઞાન પડે એટલે ટીપું આખું એબ્સોર્બ થઈ જાય, એને કહેવાય બ્લેક હોલ. समझ लो ऐसा ही. अच्छा. ज्ञानी के चरण ऐसे होते हैं. अच्छा. અને બીજો પ્રશ્ન હતો એમનો, બહુ મારે પ્રશ્નમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, પણ આ પહેલા પ્રશ્નમાં, બીજા પ્રશ્નમાં એનો પ્રશ્ન બીજો હતો, નૂતને પૂછ્યો હતો કે પેલા સપ્તપતિ તારાઓમાં કયા એલિમેન્ટ્સ સમાયેલા છે, એ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો એને. એટલે હા, એ ટેપ મેં શોધવા માટે બહુ પ્રયત્ન કર્યા, પણ એ ટેપ તો ક્યાંય જવાઈ ગઈ, ખબર નહીં ક્યાં જતી રહી. સરસ દાદાએ જવાબ આપ્યા હતા. અને આખો દિવસ દાદાએ નૂતન ક્યાં ગયો ને એને જ્ઞાન લીધું બીજે દિવસે. ઓકે. એટલે શું કહેવાય, એને શું કહેવા માંગે છે દાદા? अरे सात प्रकृति और केंद्र में भगवान है, शुद्धात्मा भगवान. હા, એ તો ખબર છે કે આપણે મન વચન કાયા वही है और कुछ नहीं है. 6 तत्वों के बाहर कुछ भी नहीं है. अच्छा अच्छा. और ये 7 प्रकृति को पहचानना है, समझना है, और वो मैं नहीं हूँ. लेकिन ये तो हमें दादा मिले, उनकी कृपा प्राप्त हुई, इसीलिए इतनी आसानी से कहते हैं कि बस इतना ही है. और इतना ही है वो समझने के लिए लोग जन्मांतर निकाल लेते हैं. अच्छा अच्छा. પછી તો ઓકરીની અંદર કનુ દાદાને કોઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો, કોઈક સાયન્ટિસ્ટ આવ્યો તો એને પ્રશ્ન પૂછ્યો તો દાદા એવું કહેતા હતા કે ગુચડા જેવું છે, ગુચડા જેવું. એ શું હશે? यानी वो जो जिसको केओस बोलते हैं ना, गुचड़ा. हाँ, केओस पद्धति, राइट. वो केओस में भी ऑर्डर है, लेकिन वो ऑर्डर हम समझ नहीं पाते, इसीलिए उसे केओस करके बोलते हैं. अच्छा. जब समझ में आ जाता है तो कोई भी प्रकृति की अवस्था वो उलझी हुई नहीं है, लेकिन जिनको वो सुलझ गया है, समाधान हो गया है, जिसका सॉल्यूशन आ गया है, उनको वो कोई परेशान नहीं करती. अच्छा अच्छा, समझी गई. लेकिन जिसे वो जैसे बोलते हैं ना कि न्यूक्लियर फिशन करते हैं ना,
एटॉमिक बॉम्बार्डमेंट मोड, तो उसमें बहुत डिस्टरबेंस आता है। वो डिस्टरबेंस को समझने के लिए बोले वो शक्य नहीं है, लेकिन वो डिस्टरबेंस जिसको बोलते हैं वो ऑर्डर है। ऑर्डर डिस्टरबेंस मतलब कि जिसके अंदर ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर यानी कि उसका कोई ढंग नहीं है। अच्छा, लेकिन ये ढंग के बाहर कुछ है ही नहीं, लेकिन जो हमें समझ में नहीं आता है ना उसको हम डिस्टरबेंस बोल लेते हैं। अच्छा, क्योंकि वो बुद्धि से समझ में नहीं आता है, बुद्धि से पकड़ में नहीं आता है, वो बराबर છે, ज्ञान बराबर से છે, ही पकड़ में आता है। और जो ज्ञान के क्षेत्र में पहुंच गए हैं, बुद्धि से पार हुए हैं, अबुध हुए हैं, उनको प्रकृति की कोई परिस्थिति उलझा नहीं सकती। अच्छा, अच्छा, ये सब सहज है, इसीलिए वो प्रकृति से बाहर निकले हैं। इसीलिए दूसरों को जिनको प्रकृति से निकलना है, ये 7 प्रकृति में से वो 7 ही प्रकृति है, लेकिन इतनी उलझाती रखती है, उलझा कर रखती है, उसमें से आप निकल नहीं पाते। लेकिन जो निकल कर बैठे हैं, ध्रुव पर वो बैठ गए हैं, ध्रुवता जिनको प्राप्त हो गई, स्टेबिलिटी प्राप्त हो गई है, केंद्र में आ गए और केंद्र छोड़ते ही नहीं है, केंद्र में ही निवास करते हैं। ऐसे ज्ञानी जब मिल जाते हैं तो हमारा भी छुटकारा हो जाता है। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद, बुलाते हैं, आप फॉलो करिएगा। नमो जय सच्चिदानंद, वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव सावणम, ऐसो पंचनमुकारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौवपावपणासनो, सवपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।